स्टॉप भाई स्टॉप, व्हाट द फक आर यू डूइंग। मैं उसे फेस टाइम करती हूँ तो अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है कॉल पे। We all know this setup and we know what's coming. Another story time. First of all, I got scared because my last video, it just like blew up and there are more than 70 comments at the moment. I posted it 2 days earlier, so I don't know when you're going to see this video. But thanks a lot. And for the people who are saying that I'm lying, bitch, why the fuck would I lie about something like that? Maybe in a Q&A video, I should get my mom and let her explain her side of the story and then people would believe. But imagine somebody telling you that trauma, you're like, झूठ बोल रही है. But I can't really blame those people also because on the internet everybody lies. Anyway, let's get started. Now this story starts when I was in 12th grade. So I was 17 years old and I was dating this one guy 3 years elder to me. So I was in a normal relationship with him. Everything was going good except he had some issues at home, which respect because he was handling it. But वो मेरे ऊपर आ रहा था issues को लेके. Now I'll explain to you how. Everything was going well. The only problem I had was that he wouldn't meet me, okay? And I'm a sucker for attention like that. Like if I have a boyfriend, I want to be with him all the time, and I think a lot of people would relate to that. And why would you not want to meet your girlfriend? Like I would see so many couples meeting each other and being happy that, oh my god, I'm going to pick up my girlfriend, and I'll be like, तो ऐसा ड्राइव पे भी नहीं जाता. So now this was in 2019. Okay, so that time we were in a long distance relationship, तो हम वैसे भी नहीं मिल पाते थे. But since 2020 में COVID happened, he had to come back here. I was like, okay great, वो मेरी सिटी में ही रहता था. तो मेरे को लगा चल अब तो ये वापस आ गया, तो अब तो हम बहुत मिलेंगे. फिर तो हम बिल्कुल ही नहीं मिले. तो मैंने बोला यार मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है, मे बी ही इज चीटिंग ऑन मी और ही इज विद समबडी एल्स, दैट ही जस्ट डजंट वांट टू बी विद मी, सो व्हाई डजंट ही जस्ट ब्रेक अप विद मी. मेरा अपना दिमाग एक अलग टैंजेंट पे जा रहा है, ठीक है. लाइक वी वुड टॉक एवरी डे एंड बिकॉज ऑफ कोविड वे लाइक नोबडी वाज गेटिंग आउट देयर हाउसेस एंड सबका शेड्यूल फक हो चुका था. एंड सिंस आई वाज इन 12th grade मेरे बोर्ड्स आने वाले थे, ठीक है. नाउ वन थिंग यू नीड टू नो इज दैट I wasn't like a very studious kid, but I was still like a part, like I'd like to be a part of the studious group. My aim was to get like around 95% in 12th. Like so पूरा जो साल था 2020 का, I think till October-ish, we were very uncertain कि कुछ होगा कि नहीं. And then let's call that guy F, like F in the chat. And since COVID था तो हम लोग पूरी रात बात करते रहते थे, ठीक है. जिसकी वजह से मेरी कोई पढ़ाई नहीं हो रही थी. Like I would literally sleep at 7 AM in the morning. एंड उसकी गलती नहीं है, मैं भी एकदम चूतिया ही हूँ, ठीक है. और फिर मेरे को घर से डांट पड़ने लगी कि यू आर नॉट स्टडिंग, यू आर नॉट डूइंग दिस, यू आर नॉट डूइंग दैट. और मैं लाइक आई रियलाइज दैट आई एम एक्चुअली नॉट स्टडिंग. तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब मैं इस लड़के को बोलती हूँ कि मैं लाइक यू नो आई कांट टॉक टू यू टिल 7 in the morning. तो फिर मैंने उसको ये बात बोली कि आई डोंट वांट टू टॉक like for so long because I don't have that much time, and he got mad at me. Like I want to talk, what do you mean we can't do this, we can't do that. And I was like okay fine, like oh my god, he loves me so much, he wants to spend so much time with me. पहले तो cute था, but after that ये बात वो समझ ही नहीं पा रहा था कि भाई मुझे पढ़ना है. एंड नवंबर में आई थिंक दिवाली थी, तो मैंने सोचा था कि लिसन दिवाली के बाद तो मुझे पढ़ना ही है, मैं नहीं रुक सकती हूँ इतना ज़्यादा. मैंने धीरे धीरे सोचा कि मैं अपना डिस्टेंस बनाती हूँ. तो मैं 12-1 बजे खुद ही बोलती थी कि चल यार मैं पढ़ने जा रही हूँ और मैं फेस टाइम पे और देर नहीं बात कर सकती. तो ही वुड स्टार्ट क्राइंग, वो रोने लग जाता था, ऐसे आंसू टपका के रोने लग जाता था. मुझे तो पहले बहुत बुरा लगने लग गया कि ये क्या है, ये रो क्यों रहा है मेरे चक्कर में. और मैंने बोला कोई बात नहीं यार, मैं कर लूँगी बात, कोई इशू नहीं है. उसके बाद एक दिन मैं पढ़ रही थी रात में अगेन, और वो मुझे मैसेज कर रहा था कि समथिंग ही वाज सेइंग, और मैंने अपना फ़ोन साइड में रखा हुआ था, ठीक है. एंड आई वाज स्टडीइंग. तो उसके बाद फिर मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ लाइक 15-20 मिनट बाद, and I have like 50 missed calls, 100 messages. Like I obviously get scared और मैं उसे कॉल बैक करती हूँ तो उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया. तो मैं अपना व्हाट्सएप पे जाती हूँ और मैं देख रही हूँ कि oh my god this is so bad. पहले तो वो स्टार्टिंग की लाइन्स में ही वैसे 100 करोड़ मैसेजेस है, ठीक है. इमेजिन दिस माय चैट बॉक्स, लाइक मैसेज पे मैसेज. तो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो पहले है कि वेयर द फक आर यू, दिस एंड ऑल. और मैं उसे बता के गई हूँ कि मैं पढ़ने जा रही हूँ भाई. उसके बाद वो कहता कि आई एम गोइंग टू किल माई सेल्फ. और उसके बाद वो मेरे को कहता कि why are you not replying to me, you are the reason why my parents would lose their only child. मैं बहुत डर जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके बाद मेरा नंबर कॉल भी नहीं उठा रहा होता. डर रही हूँ और मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही हूँ कि भाई उसको कॉल कर. और उसके बाद फिर मुझे रिप्लाई करता है कि व्हाट हैपेंड. और फिर मैं उससे सॉरी बोलती हूँ कि भाई सॉरी ये क्या कर रहा है. तो और ये सब मैं डर गई थी ऑब्वियसली, भाई सब डर जाएंगे ऐसा कुछ होगा तो. फिर द नेक्स्ट डे अगेन दिस हैपन्स कि मैं फिर पढ़ने जाती हूँ रात को
तो वो मुझे मैसेज करता है कि तू कहाँ है, लाइक ही वुड बी लाइक कि नहीं तू कॉल पे ही रहे, तू कॉल पे ही रहे, तू कॉल पे ही रहे। और मैं इरिटेट हो गई एक बार बात भाई कि भाई पढ़ने दे यार, मैं कौन सा बहन जो जाके चीट करना चाहती हूँ, पढ़ना ही चाह रही हूँ ना मैं। तो मैंने बोला कि यार आई कांट टॉक टू यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे बोर्ड आने वाले हैं 3 महीने में यार। वो इतना गुस्सा हो गया कि उसने कॉल काटी, ठीक है, और फिर लड़ने लग गया मेरे से। और मैं भी, एंड माइंड यू दैट टाइम वाज़न्ट आई हेटेड दैट पर्सन इन दैट मोमेंट, आई स्टिल लाइक्ड हिम। तो फिर मुझे बुरा लग रहा था यार कि ये बात ही तो करना चाहता है, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ उसके साथ और ऐसा जो भी। तो मैंने सोचा कि चल ठीक है, मैं लास्ट अपना जो नोट्स ख़त्म करके फिर मैं उसे टेक्स्ट करती हूँ, ठीक है। तो मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ एंड यू वोंट बिलीव व्हाट आई फाइंड अगेन माई चैट बॉक्स, गालियाँ बहुत सारी कि तू कहाँ है, ये है वो है, ठीक है। आई एम स्क्रोलिंग एंड देन देयर इज दिस पिक्चर. I'm going to give you a trigger warning about suicide, self-harm and everything. So please, I see a picture where there's a noose hanging from the, what is it, fan. और वो नूस नहीं था, बेसिकली चुन्नी थी आई थिंक। तो लोग अपनी मम्मियों की चुन्नियों का ये सब करते हैं, और वो उसके पंखे से उसने लटका रखी थी। ऐसा नहीं था कि भाई कैसे फांसी का फंदा बना के लटका रहा, बस ऐसी चुन्नी लटकाई हुई थी। और वो लास्ट पिक्चर थी जिसमें उसने वो भेज के मुझे बोला था कि लिटरली दैट my parents lose their only child because of you. You can only imagine कि मेरे साथ क्या हो रहा होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो आई स्टार्ट क्राइंग, मेरे को लगा फक 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 कि मैंने क्या कर दिया। मेरे दिमाग में 100 चीज़ें आ रही है कि भाई वो कहीं मर तो नहीं गया, उसके घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसका लास्ट मैसेज ये है कि बिकॉज ऑफ यू लूज, ओह माय गॉड, पुलिस मेरे को पकड़ के ले जाएगी। पर मैं तो सिर्फ पढ़ रही थी, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। इतना मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है। और मैं उसे कॉल कर रही हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा भाई मेरा, तो वो मेरी दोस्त का फ़ोन नहीं उठा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। तो मेरा तो दिल, एक एंग्जाइटी अटैक मुझे ऑन द स्पॉट आने वाला था, ठीक। उसके बाद आई फकिंग हैड द करेज टू पिक अप माई मॉम्स फोन एंड आई कॉल्ड हिम। रात को 4 बजे BT डब्स, ठीक है। मैं अपनी मम्मी के रूम में गई, मैंने उनका फ़ोन लिया और मैं अपने रूम में आके उसे फ़ोन कर रही हूँ। और फिर वो नॉर्मल उठा है, हेलो या उसको, बिकॉज ही डिडंट नो इट वाज माय मॉम्स लाइक फ़ोन। और मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा, बट आई टेल हिम दैट एफ पिक अप माई कॉल, व्हाट द फक, तू क्या कर रहा है ये। तो फिर वो मुझे बोलता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे से बात नहीं करो। और फिर इवेंचुअली वो सो जाता है। वो पूरी रात मैं तो नहीं सो पाती हूँ क्योंकि मेरी तो फट के 10 करोड़ हो गई थी। तो मैं सोचती हूँ कि लिसन, अब ना मुझे ये थोड़ा सा साइको होता जा रहा है और मेरी फटती इस बात पे, क्योंकि उसने सारा ब्लेम मेरे पे डाल दिया। तो अगर ये कल को कुछ कर भी ले अपने आप को, और मैं बेचारी, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है भाई, या तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया होता और तुम मेरे को बोलो भी। तो फिर मैं थोड़ा सा आई स्टार्ट फीडिंग इनटू माय ओन ब्रेन कि यू हैव टू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम दिस गाय। उसके बाद सेम डेज गो बाय, वो रात को मेरे से बात करना चाहते हैं, मैं नहीं करती हूँ, हमारी लड़ाई होती है। तो वो पूरा 1 महीना जो था अक्टूबर का, पूरा इन चीज़ों में निकल गया, ठीक है। फिर नवंबर आता है और दिवाली आने वाली होती है। एक बार हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है, ठीक है, सेम इसी बात पे कि तू मेरे से बात नहीं कर रही हो, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। और मैं उसको बोलती हूँ कि तू मेरे से मिलता क्यों नहीं है, लाइक मेरे पास इतना कम टाइम होता है पढ़ाई की वजह से, और तू मेरे से उसमें भी नहीं मिलता, तो वो टाइम घर पर बैठा रहता है। बेसिकली वो क्या करता था कि अगर मुझे किसी चीज़ का बुरा लग रहा है ना, तो वो उस चीज़ को पकड़ लेता था। मैंने बोला कि यू डोंट इवन वांट टू मीट मी, यू डोंट लव मी और ये सब। तो उस बात को, यू थिंक आई डोंट लव यू, हाउ कुड यू थिंक दैट, ओ माई गॉड, यू थिंक सो माई एफर्ट्स आरंट इनफ, एनीथिंग आई डू इज इनफ फॉर ये, वो ये सब बोलता रहता। और मैं ऐसे बैठी थी कि भाई गुस्सा तो मैं थी, अब तू रोना पिटना शुरू करेगा तो लाइक ये तो पहचान अपने आप को विक्टिमाइज कर रहा है, तो मुझे देखो प्यार से मनाना पड़ेगा और ये सब। तो फिर मेरा गया काम, ठीक है। मैं उससे लड़ती हूँ, बहुत सुनाती हूँ मैं उसको, और फिर वो अपने हाथ काट लेता है। एंड नॉट लाइक दैट, वो मेरा नाम लिख लेता है अपने हाथ पे। यही तो पढ़ रही थी कि भाई क्या कर रहा है यार तू, कभी बहन जो फंदा लटका लेता है, कभी हाथ काट लेता है। मैंने उसको मनाया, जो भी किया, और वो सो गया, ठीक है। नाउ लेट्स से द नेक्स्ट डे वाज 5th of November, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन द स्टोरी बेटर टू यू। सो जाता है 4th नवंबर को। 5th नवंबर की सुबह उठ के मैं सोचती हूँ कि भाई दिस इज़ नॉट नॉर्मल, दिस गाय नीड्स सम हेल्प, और ये मुझे फंसा लेगा, ये कभी भी अपना इसका हाथ पैर काट के मेरा नाम लिख के चले गया अगर किसी लेटर में, तो मेरे तो लौड़े लग जाएंगे। सो आई गैदर द करेज to tell his mom about it. Okay, I had his mom's number for emergency purposes and I think this was an emergency. मैं सुबह 8 बजे उसकी मम्मी को कॉल करती हूँ, ठीक है। हाय आंटी, प्रियांशी दिस साइड, आई वांट टू टेल यू समथिंग। मुझे बहुत बुरा लग रहा था भाई, हाउ डू यू टेल समबडीज मदर दैट आपका बेटा पागल है। मैं बहुत प्यार से उनको बताती हूँ कि वो थोड़ा ऐसी हरकतें कर रहा है, मुझे ना थोड़ा डर लग रहा है, आई वांट टू ब्रेक अप विद हिम, बट मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसे ब्रेकअप करूँ और वो कुछ ऐसा बहुत बुरा कर ले जिससे मेरे पे ब्लेम आ जाए, और प्लस ही लूजेज like himself. तो उसकी मम्मी मुझे बोलती हैं, बेटा कैन यू मीट मी, एंड शी वाज क्राइंग। ओके, सो आई वाज लाइक ऑफ कोर्स आई कैन मीट यू। उनको बोलती हूँ आपको शाम को मिलती हैं, शी वाज लाइक डोंट टेल एफ अबाउट इट। मैंने बोला ऑफ कोर्स आई वोंट, एंड प्लीज यू आल्सो डोंट टेल, कहीं वो
मेरे को ही ना मार दे इस चक्कर में। लिटरली उसकी मम्मी को उसके घर से बाहर, उनके घर के बाहर से उठाती हूँ, वो मेरे से ऐसे बात कर रही होती है और मैं उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ, शी स्टार्ट्स क्राइंग। ओके, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि भाई फक। फिर उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि ये सब ये क्या कर रहा है, नाउ दिस इज वेयर थिंग्स टेक अ टर्न। मैं घर जा रही हूँ, मैं उनको ऐसा बोल रही हूँ और आंटी यहाँ से मुझे कहते हैं कि बेटा आप प्लीज़ उससे ब्रेकअप मत करो। और मैं सोचती हूँ कि हाँ प्लीज़ हाथ मत जोड़ो आंटी, मैं नहीं करूँगी उससे ब्रेकअप। और वो मुझे बेसिकली बोलती हैं कि नो वो हमसे कुछ शेयर नहीं करता है और अगर उसके माइंड में ये सब चल भी रहा है तो वो सिर्फ आपको बताएगा, तो फिर आप प्लीज़ उससे ब्रेकअप मत करो और आप उसको कन्विंस करो कि वो एक साइकाइट्रिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेने जाए। मतलब आप मुझे बताना, ठीक है, हर दिन रात को मैं आपको मैसेज करूँगी और आप मुझे बताना कि आज वो बेटर था, आज वो खराब। भाई मैं भी तो एक बच्ची हूँ, आपका 21 साल का बच्चा नहीं संभाल पा रहा खुद को, ये एक 17-18 साल की बच्ची उस 21 साल के बुढ़े को संभाले, ठीक है। मतलब आई एम 21 राइट नाउ, आई वुड नेवर रिलाई ऑन एनीबडी फॉर माई ओन इमोशनल नीड। ऑफ कोर्स क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी चुड़ैल नहीं हूँ, तो मैंने उनको बोला कि या आंटी आई हेल्प यू, डोंट वरी, बट आई इम्प्लाइड इट कि आंटी मेरे बोर्ड्स हैं, मैं नहीं बात कर पाऊंगी उससे और ये सब ठीक है करके कि भाई प्लीज़ मुझे नहीं रहना। वो कहती हाँ कोई बात नहीं, हम 1 महीने में हम इसको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, ठीक है। आप सोचो कि मैं उसके साथ तो एक रिलेशनशिप में, मैं उसकी मम्मी के साथ भी एक रिलेशनशिप में हूँ, एंड द ओनली थिंग आई वांटेड फ्रॉम हिज साइड, फ्रॉम एफ साइड वाज मुझसे मिल ले। भाई इतना तो मैं मांग ही सकती हूँ भाई कि अगर तू मेरा बॉयफ्रेंड है तो तू मेरे से मिल ले, ठीक है। आई जस्ट वांट टू लाइक मीट हिम। मैं इसको क्या रीजनिंग दूँ भाई, बनता है मेरे को मिलना है, मेरी मर्जी, ठीक है, मेरी इमोशनल नीड्स हैं। तो वो नहीं मिलता था मेरे से कि सपोज ये पियांशी है और मैं वो लड़का हूँ कि तू उसके सामने रो रहा है, तू उसके सामने हाथ काट रहा है, उसका नाम लेकर, तो तू उससे मिल क्यों नहीं रहा, क्या प्रॉब्लम है। और हमारा पूरा प्लान बनता है न्यू ईयर्स नाइट पे जाने का, बाय ड्रेस एंड एवरीथिंग। और वो मेरे को बोलता है कि मैं ना 6 बजे आऊँगा, लाइक आई कम एट 6 PM टू पिक यू अप एंड देन वील गो आउट। 6 बजे मैं उसको मैसेज करती हूँ कि वेयर आर यू, लाइक यू नो आई एम रेडी एंड एवरीथिंग, तो मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। मेरे को लगता है भाई इमेजिन मैं अपनी ड्रेस में बैठी हुई हूँ एंड आई एम जस्ट टेक्सटिंग हिम कि वेयर आर यू, लाइक फुल रेडी एंड ऑल, माई हेयर इज ब्लोन आउट एंड एवरीथिंग, और नहीं उठाता मेरा मैसेज का, मेरा कॉल नहीं उठाता और ये वो, तो मैं बहुत गुस्से में आ जाती हूँ, ठीक है। लाइक दैट टाइम आई एम लाइक माँ चौथा अपनी रहन चौथ, कल का मरता आज मर, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मेरे को नहीं मिलना तेरे से, मैं कभी नहीं मिलूंगी। मैं बहुत गुस्से में थी। मुझे मैसेज करता है कि प्रियांशी आई एम सो सॉरी, मेरी ना घर पे बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है अपने घर वालों के साथ, मैं नहीं आ पाऊंगा, लाइक दे वुडंट लेट मी लीव द हाउस एट दिस मोमेंट। और मुझे ना पता था वो झूठ बोल रहा है, मैं उससे लड़ ली प्रॉपर, ठीक है, कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू झूठ बोल रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, ठीक है। तो उसने इतना बड़ा सीन बना दिया कि मुझे एक ब्रोंकाइटिस अटैक आ रहा है कि तूने मेरे को ये सब इतनी गालियाँ दे दी, और रोने लग गया। और उसने मुझे बोला कि मेरे को फेस टाइम कर, मैं उससे फेस टाइम करती हूँ तो अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है कॉल पे। लाइक आई फकिंग विश आई वाज एग्जैजरेटिंग, ओके। तो मेरे को फेस टाइम पे अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है और मैं देख रही हूँ बैठ के कि लाइक मेरे उससे देखो भाई कि ये क्या कर रहा है। मैं बोलूँ भाई लाइक स्टॉप भाई स्टॉप, व्हाट द फक आर यू डूइंग। और कहता है कि तेरे वजह से मुझे, और लाइक ही फकिंग स्टार्ट्स फेकिंग अ फकिंग ब्रोंकाइटिस अटैक। मेरे को तो पता भी नहीं है कि वो कैसे होता है, टच वुड। वो ऐसे करने लगता है कि मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं आ रही। और भाई मैंने कहा ये क्या आदमी है भाई। और मुझे 90% पता था कि ये झूठ बोल रहा है, पर फिर भी वो 10% ने मुझे ओवर पावर कर लिया और मैं उसे बोल रही हूँ कि ओ माय गॉड गो टू द डॉक्टर, ये कर वो कर। पर मुझे पता था ये झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसकी मम्मी को कॉल किया कि हाय बेटा, मैं आपसे बाद में बात करूँगी, मैं ऑफिस में हूँ। मैंने उनको बोला कि आंटी फ़ोन नहीं उठा रहा है, ये आपसे लड़ाई तो नहीं हुई है आपकी, या अंकल से किसी से लड़ाई तो नहीं हुई है उसकी। तो उसने बोला कि बेटा आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हम तो अभी ऑफिस में है, लाइक अंकल भी रात तक नहीं आते और मैं भी रात तक नहीं आती हूँ, तो उसकी किसी से लड़ाई नहीं हुई है। इतने गुस्से में आई, इतने मर तू कहीं जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने आप को कर लिया डिटैच बिल्कुल, और मैं बस वेट कर रही थी कि मैं इसकी मम्मी को बताऊँ कि आंटी मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ, आपका बेटा आप संभालो, मेरा बेटा नहीं है वो। अब नेक्स्ट डे 1 जनवरी मुझे मैसेज करता है कि तुझे तो फ़र्क भी नहीं पड़ता ना कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो हॉस्पिटल में है, साली शक्ल देखी है तूने अपनी, एक बार और झूठ बोला ना मैं थप्पड़ मार के हॉस्पिटल भेजूंगी तेरे को। उसकी मम्मी का मुझे मैसेज आता है, ठीक है, कि बेटा आपने मुझे कल कॉल किया था, इज एवरीथिंग ओके विद हिम। बेटा वो ना उसको मतलब उसको हो रहा होगा कुछ, उसको हो रहा होगा। अरे यार मुझे भी तो हो रहा है कुछ। मैं उनको बोलती हूँ कि आंटी मेरे को ना ब्रेकअप करना है प्लीज़, अब जैन आ चुका है और मेरे मार्च में पेपर है और मैं नहीं ये सब हैंडल कर सकती हूँ। उसकी मम्मी कहती हैं कि बेटा 1 हफ्ता और रुक जाओ, 1 हफ्ता और। भाई अब पागल हो क्या। मैं उस टाइम तक बहुत परेशान हो गई थी यार कि ना इस लड़के के साथ मुझे रहना है, ठीक है। एक बेचारी सी मम्मी के चक्कर में मैं लगी पड़ी हूँ, इसको अक्टूबर से साला जैन हो गया,
ठीक है। तो मैं सोचती हूँ कि चल कोई बात नहीं भाई, एक हफ्ता और, एक हफ्ता और। उस एक हफ्ते में इस लड़के ने मेरे से इतनी लड़ाई कर ली कि तू मेरे को हॉस्पिटल में देखने नहीं आई। और कोई हॉस्पिटल में नहीं था वो, बाय द वे, ठीक है। उसकी मम्मी से मैं हर रात पूछती थी कि ऐसे क्या कर रहा है बेटा, उसने अभी खाना खाया, बेटा उसने ये किया है। कोई हॉस्पिटल में झूठ इतना बड़ा, और मैं उसको बोल भी नहीं सकती कि मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है, तो मैं एक्टिंग कर रही हूँ कि ओ शिट टू, आई होप यू आर फाइन एंड ऑल दैट। एक दिन वो मुझे रात को, मैं फ़ोन नहीं उठा रही हूँ, वो मुझे वीडियोस भेज रहा है अपने आप को थप्पड़ मारते हुए, और बोल रहा है कि मैं इतनी नॉर्मली बता रही हूँ, इतना नॉर्मल वो था नहीं, ठीक है। मैं तो रोने लग जाती थी भाई वो वीडियोस देख के कि मैं क्या करूँ इस चीज़ का। मैं लिटरली, मैंने वो वीडियोस अपने दोस्तों को भी भेजी है। अब आई वाज थिंकिंग ऑफ लाइक आस्किंग देम एंड आई विल पुट अ प्रूफ, बट मैं नहीं डाल सकती हूँ। मे बी इफ आई फाइंड अ चैट आई विल पुट अ प्रूफ ऑफ दैट। वो मुझे वीडियोस भेज रहा है जिसमें वो अपने आप को थप्पड़ मार रहा है, और वो मुझे बोल रहा है कि तेरे वजह से है, तेरे रो रहा है, थप्पड़ मार रहा है, तेरी वजह से हो रहा है मेरे साथ, ये तेरी वजह से हो रहा है, तेरी वजह से मुझे ब्रोंकाइटिस अटैक आया, तेरी वजह से हुआ है। भाई अब मेरे जैसे सेन इंसान, मतलब मैं ठीक हो गई थी, मैं उस टाइम तक मेरे में अक्ल आ गई थी। मेरे जैसा सेन इंसान भी तो यही सोचेगा यार कि मैंने ऐसा किया क्या कि तेरे साथ ये, तेरे को ये सब हो रहा है यार मेरे चक्कर में। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मतलब उस टाइम तक मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ, मेरे को मैं पागल हो गई थी। और मेरे बोर्ड्स आ रहे थे भाई, मैंने 1000 बार बोल चुकी हूँ मैं अभी तक, बट लेकिन मेरे को पढ़ना था, मैं पढ़ाई के बीच में ये सब मैं नहीं हैंडल कर पा रही थी। मैं जो एंड तक उस हफ्ते के मेरे को लगा ये तो साला इतना अपने आप को मारता रहता है, मुझे फ़र्क ही पड़ना बंद हो गया भाई। लाइक आई माइट लुक लाइक अ सीरियल। एक बार तो मैं हंसने लग गई थी वीडियो देख के कि यू आर अ फकिंग ग्रोन एस मैन, व्हाट द फक आर यू डूइंग। मैंने उसकी मम्मी को ना ऐसे कुछ साइकोलॉजिस्ट के नंबर, तो मैंने बोला कि आंटी इनसे बात कर लो आप, क्योंकि इसकी ना थोड़ी हालत बिगड़ती जा रही है, और अब ना मेरा फ़ोन मेरे मम्मी पापा ले रहे हैं क्योंकि बोर्ड्स आ रहे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे, पर भाई बस भाई मैं नहीं कर सकती। तो उसकी मम्मी कहती कि बेटा एक हफ्ता और। उसके बाद फिर अगले दिन वो लड़का मुझे बोलता है कि ओके आई वांट टू कम मीट यू, हम मतलब बहुत लड़ लिए ये पूरा हफ्ता है वो। तो मैंने बोला कि यार चल कोई बात नहीं, मिल लेते हैं यार, है तो बॉयफ्रेंड ही, ठीक है। मैं फिर रेडी कि आ रहा है मिलने, बिल्कुल रेडी हूँ मैं, गेस कर लो क्या हुआ, नहीं आया। मतलब मैंने कहा अपनी तू दिल्ली बाहर आने वाला है, हाड़ में जा। को मैसेज किया कि मेरी ना घर पे लड़ाई हो गई है। मैंने एक बार उसकी मम्मी से पूछा कि आंटी आपने कुछ बोला था, वो मुझे कहती कि नहीं वो तो अपने रूम में है। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, ना मैंने उसकी मम्मी को कुछ बोला, मैंने किए दोनों नंबर ब्लॉक। अब मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़े कि अगर आपने मुझे ऐसे किसी आदमी से दोबारा मिला दिया तो मेरे हाथ खड़े हैं भाई लव लाइफ से। ओम शांति ओम कर दिया मैंने, और मुड़ के नहीं देखा मैंने उसको। लड़का एक बार वापस भी आया था मेरी लाइफ में, लाइक 1-1.5 साल बाद, एंड ही सेड सॉरी एंड ऑल दैट कि नाउ आई एम इन अ मच बेटर प्लेस। और वो मैंने बोला रिस्पेक्ट, पर मेरे से दूर रहे। आई नो इट्स नॉट एज क्रेजी एज द लास्ट वन, क्योंकि वो तो अलग ही केस था, ये बेचारा कोई क्रिमिनल तो नहीं था, बट आई वाज स्टिल प्रीच फॉर मी एंड that's it. If you guys relate to this story, I am so sorry. Stay safe, girls and boys both. Okay, bye. I'll see you in my next video. I'm very hungry now.